Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mova. Again, welcome to all of you in this class 7 mathematics. And in this lecture, we will start some new chapters of unit number 1. That is the third one chapters is going over here. So that is a comparing quantities over here in this unit number first. So this unit number 1, that is also another one very easy chapters. Already you studied the some of the portion into the class 6 also. So this is the comparing quantity, that is from your supplementary book. You can also write down this whole things in your first, whenever you complete your previous chapter. Then after you have to write this NCERT lead mapping on the first page of your notebook, and write down this all these things, the name of the topics, where it available on NCERT page, and the our supplementary book also. तो यहाँ पे दो चीज आपको मेंशन की है, पूरा चार्ट आपको गिवन है, दैट इज अवेलेबल ऑन योर supplementary SB15 on your supplementary book. This SB15 says suggesting that this is the chapter number 8 from the NCERT book also. तो आपका NCERT book का chapter number 8 है, that is comparing quantities over here. So today we will start about this comparing quantity point of view, discuss the different 6 topics: introduction, equivalent ratios, percentage, another way of comparing the quantities, that's why we have to learn about the percentage, use of percentage, then prices related to and terms of buying and selling, and then after charge given in the borrowable money or simple interest. ये सब प्रोसीजर है, वो हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम सीखेंगे. So that all are the points, SB 15 से लेके 15, 17, 20, 22 and 23. All are the concepts points available on your supplementary book. So there are 6 different pages covers the whole topics of comparing quantities, and NCERT pages पेज नंबर 153 से स्टार्ट होके 153, 154, 157, 163, 167 and 169 पेज नंबर of NCERT. So you must be noted down this all the pages of NCERT as well as the lead page. So now we are going on to the first concept here. Consider that concept time 12 से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पहले हमें यह समझना है कि रेशियो क्या है. तो इन क्लास 6 ऑलरेडी आप सीख चुके हो कि वी हैव लर्न रेशियो एज अ वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज. रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज. कोई भी टू क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए हमें रेशियो का यूज किया जाता है. यूजिंग डिवीजन, क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते दो क्वांटिटीज को, तो उसको कंपैरिजन किसके साथ हम यूज करेंगे? ऑलवेज बी ऑपरेशन यूजिंग फ्रॉम द डिवीजन. सो डिवीजन करके हम किसी भी दो क्वांटिटीज को यदि कंपेयर करते हैं, उसको हम रेशियो बोलते हैं. वन मोर थिंग, इन रेशियो वी कंपेयर एंड क्वांटिटी इन द टर्म ऑफ द अदर. वी कैन से दैट we all know that the ratio using the symbol like dot, डबल डॉट की मैं बात कर रहा हूँ. आप अपनी सप्लीमेंट्री बुक में देख सकते हो, तो आपको दो साइन ऐसे दिखती होंगी. दिस इज सिंबल ऑफ रेशियो. इसको हम क्या करते हैं, ये सिंबल यदि आपको नहीं दिखाई देता है तो इट्स लुक्स लाइक दैट. तो रेशियो को किस सिंबल से हम डिनोट किया जाता है? दो डॉट से. और दो डॉट ऐसे लिखने हैं, समझ में आ रहा है ना? मैं यहाँ पे ब्लैंक पार्ट पे आपको दिखाता हूँ. दिस इज अ रेशियोज डिनोशन. नाउ फॉर एग्जाम्पल हियर कंसर्न दैट रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ए बॉय इज 3 feet टू द हाइट ऑफ ए ट्री. आप देख सकते हो कि बॉय की हाइट है वो 3 feet है, और आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, और ट्री की जो हाइट है वो 9 feet है. So can be represented as follow: the ratio of the height of the boys to the height of the tree. हमें बॉयज और ट्री दोनों की हाइट का रेशियो निकालना है. तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करने के लिए हम कौन सी चीज यूज करेंगे, वो हमने डेफिनेशन में अभी देखा, डिवीजन. तो जब भी रेशियो कोई भी दो थिंग्स की, कोई भी क्वांटिटी के बीच में यदि हमें कंपैरिजन करना है,
then automatically we are using the division. तो यहाँ पे हाइट ऑफ द बॉयज एंड हाइट ऑफ द ट्री, ये दोनों का रेशियो हम निकाल रहे हैं। तो हाइट ऑफ द बॉयज है 3 और हाइट ऑफ द ट्री है वो 9, तो 3 डिवाइड विथ 9, 3 बाई 9 ऐसा भी बोल सकते हैं, 3 डिवाइड बाई 9 भी बोल सकते हैं, और 3/9 को फर्दर सिंप्लीफाइड करें हम, तो जिसको हम बोलते हैं कि लोएस्ट फॉर्म में यदि हम इसको कन्वर्ट करें, तो 3/9 को 3 3 9 होता है, तो 1/3 होता है, 1/3 होता है, तो 1:3 इसको ऐसे लिखते हैं। सो रेशियो इज ऑलवेज रिप्रेजेंट इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। याद रखना कि रेशियो जब भी आप रिप्रेजेंट करो तब उसके लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। यदि आपका बड़ा नंबर मिलता है तो उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। द यूनिट ऑफ बोथ नंबर्स इन ए रेशियो शुड बी द सेम। और दूसरी चीज याद रखनी है रेशियो में कि जब भी आप दो नंबर्स का रेशियो निकाल रहे हो तो दोनों का यूनिट इक्वल होना चाहिए। मतलब 1 मीटर है तो दूसरा मीटर ही होना चाहिए, 1 ग्राम है तो दूसरा ग्राम ही होना चाहिए, 1 किलोग्राम है तो किलोग्राम ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्वांटिटी हम मेजर करेंगे तो लीटर में होगी, ग्राम में होगी, किलोग्राम में होगी, मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी। तो यदि ये दोनों ऊपर नीचे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, ग्राम तो ग्राम, ये दोनों यूनिट भी इक्वल ही होना चाहिए, तब हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं। ये चीज़, दो चीज़ आप अच्छी तरह से याद रखना। तो दैट टिक मार्क्स इज ऑल्सो बी टिक मार्क इन योर सप्लीमेंट्री बुक। नाउ इक्विवेलेंट रेशियो मीन्स व्हाट, ये सब चीज़ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेशियो किसको बोलते हैं। ये चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। इफ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ टू रेशियोज इज द सेम, लोएस्ट फॉर्म जो आता है उसमें दोनों रेशियो यदि सिमिलर आता है, सेम, दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। दोनों रेशियो तभी इक्विवेलेंट होता है जब दोनों लोएस्ट फॉर्म सेम आते हैं। सो वी कैन फाइंड इक्विवेलेंट रेशियोज बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। अब आपको बताते हैं कि सपोज मान लो कि यहाँ पे 4/2 आपको दिख रहा है, 4/2 गिवन रेशियो है, आपके पास क्या है 4/2। अब 4/2 को आप लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो तो 2/1 आता है यहाँ पे। मतलब 2 से डिवाइड करो दोनों साइड को, 4/2 को 2 से डिवाइड करो, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी 4/2 आपके पास है, उसमें 4 को भी 2 से डिवाइड करो और 2 को भी 2 से डिवाइड करो। तो इसका मतलब होता है 4/2 मतलब 2 होता है और 2/2 मतलब 1 होता है। तो ये आपका इक्विवेलेंट रेशियो पहले आ गया 2/1, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने 2 से डिवाइड किया। वैसे ही 4/2 के और इक्विवेलेंट रेशियो हमें फाइंड करना है, तो एक और नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें यदि, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो 2 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, तो हमारे पास 4 इंटू 2 कितना आता है 8, और 2 इंटू 2 क्या आता है 4। सो 8/4 एंड 2/1 दैट इज द इक्विवेलेंट रेशियो। समझ में आ गया ना? जब भी कोई लोएस्ट फॉर्म आप उसका कन्वर्ट करते हैं सेम नंबर से, तब जो भी चीज़ हमें इक्वल मिलती है, सेम मिलती है, उसको हम इक्विवेलेंट रेशियोज बोलते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब हम अगले पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं। तो ये कंसेप्ट टाइम 12, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया, यू ऑलरेडी नोज दैट, एंड दैट इज कंसिडर विद द रेशियो। सो लेट अस मूव ऑन इट। सो जो भी चीज़ हमने मेंशन की हो, रैपिडली वी आर गोइंग फॉर द रेशियोज, रैपिडली वी हैव टू रिकैपिंग ऑफ दिस रेशियो। कैसे उसको रिव्यू देख लेते इमीडिएट वे से। सो दैट इज़ व्हाट इज़ रेशियो। अभी हमने वही चीज़ टेक्स्ट बुक में से देखी, वही चीज़ यहाँ मेंशन कर रहे हैं। That is very easy things for you. So let us look at the following examples here. The height of the boys to the height of the tree, that will obviously consider the 1:3, क्योंकि boys की height है वो 3 feet है और tree की है वो 9 feet है। तो 3/9 का मतलब होता है 3 3s are 9, so 1:3, that is the ratio of the following examples. Now
वी आर जस्ट व्हाट डज दिस साइन डिनोट, हमने अभी ये सब चीज़ मेंशन कर दी है, आपको पता है कि कैसे उसको मेंशन करना है. सो दैट इज ऑल्सो बी रिक्वायर्ड हियर, and that things is mentioned here. So height is 1:3, 3 feet is there, 9 feet is there. So we can say that what does this sign denote? That is obviously ratio, क्योंकि साइन डिनोट से रेशियो, ये रेशियो की साइन है हमें पता है. तो ये चीज़ हमने अभी रिकैपिंग मोड पे रखी है, तो आप सब जो जो चीज़ मैंने मेंशन की है वो सब चीज़ यहाँ पे स्लाइड थ्रू आपको दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ. So the height of the boys to the height of the tree, always consider 1:3 is there. Now we are concerned that another one points. यहाँ पे आपको एक चीज डिस्प्ले दे रही है, द कंपैरिजन बाय डिवीजन इज नॉन एज द रेशियो. जब आप किसी भी दो चीज की कंपैरिजन डिवीजन से करते हैं तब उसको हम रेशियो बोलते हैं. वो चीज आप माइंड में सेट कर दो. The comparison by division is known as the ratio. Okay. Next one is concerned that here that what does the ratio means. हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि रेशियो का मतलब क्या होता है. तो obviously height of the boys is concerned, height of the trees is concerned. So 3/9 is there. So 1/3 is the ratio of it. So this means the height of the tree is 3 times the height of the boys. आप देख सकते हो कि बॉयज की हाइट से ट्री की हाइट 3 टाइम्स ज़्यादा है, तभी 9 होता है ना. 3 में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 होता है. तो कितने टाइम्स हाइट ट्री की ज़्यादा है? 3 टाइम्स. सो वी कैन से दैट द मीन्स द हाइट ऑफ द ट्री is 3 times more than the height of the boys. So that is also be knowing. Now we are going for the another one examples here. While making a lemon drinks, अभी लेमन ड्रिंक्स हमें बनाना है. देन रेशमा एड्स 2 लीटर ऑफ वाटर एंड 200 मिलीलीटर ऑफ लेमन जूस. हाउ विल यू कंपेयर द अमाउंट ऑफ वाटर एंड जूस यूजिंग रेशियोज. ये सब चीज़ हम 6 स्टैंडर्ड में इसी एग्जांपल को ऑलरेडी सीख चुके हैं. जस्ट वी हैव टू गेट इट आउट. अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज 2000 मिलीलीटर, क्योंकि आपको पता है कि 1 लीटर में मेजरमेंट्स दिया गया है और 1 मिलीलीटर में दिया गया है. या तो दोनों लीटर में रखो या तो दोनों मिलीलीटर में रखो. यदि 2 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 2000 हो जाता है, तब ये बन जाता है लीटर में से मिलीलीटर. तो दिस इज ऑल्सो यूनिट कन्वर्जन, हम ऑलरेडी 6 स्टैंडर्ड में भी सीख चुके हैं. तो 2000 milliliter divided by 200 milliliter. So that is the answer of it. The unit of both the numbers in the ratio should be the same. मैंने अभी बोला था आपको beginning of this video कि जब आप किसी भी दो चीज़ का रेशियो निकाल रहे हो तब it should be the same unit. Otherwise it can't. ये हो नहीं सकता. इसीलिए आप याद रखना, जब आप डिवीजन कर रहे हो तब it should be a unique or same unit of numerator and denominator both. So here both the quantities are shown into the milliliter. Now that's why we got 10 by 1. So ratio is always expressed in its lowest form. आपको lowest form में convert करना है. तो lowest form हमारा ये हो गया. तो यहाँ पे ratio क्या हुआ? This means that the amount of the water present in the lemon drink is 10 times the amount of the lemon juice. Lemon juice में जो present है water इससे ज़्यादा lemon drink में 10 टाइम ज़्यादा है. ऐसा हम कह सकते हैं आउट ऑफ गेटिंग दिस रिजल्ट 10 by 1. ओके, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट वन वी आर यूजिंग दैट रेशमास लेमन ड्रिंक रेसिपी 200 milliliter lemon juice and 2 liter water. Sushma's lemon drink recipe is 400 milliliter lemon juice and 4 liter water is there. So take 1 minute to discuss it, how to solve it. The amount of lemon juice is 200 milliliter divided with 2000 milliliter, क्योंकि 2000 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. तो रेशमा में हम 2000 अपॉन 200 अपॉन 2000 milliliter यूज करेंगे. So that's why we got 1 by 10. Similar into the right side of the Sushma's lemon drink recipe, that is 400 milliliter lemon juice and 4 liter water.
सो अमाउंट ऑफ लेमन जूस एंड अमाउंट ऑफ वाटर का रेशियो जब हम निकालेंगे तो वो 400 मिलीलीटर और 4 लीटर है तो 4000 मिलीलीटर होगा, क्योंकि आपको पता है लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी क्वांटिटी को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। So 4 into 1000 होता है 4000 मिलीलीटर्स इज दैट, so that's why 1/10 is there। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशियो आर द सेम। व्हाट डू वी कॉल रेशियोज दैट आर इक्वल? जब दोनों इक्वल हो तो हम क्या बोलते हैं? अभी उसकी डेफिनेशन हमने बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो देखी, तो दोनों जगह पे रेशियो इक्वल आया, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली इक्विवेलेंट रेशियो। तो आपको पता चल गया कि जब हमारे पास दोनों रेशियो यदि इक्वल आते हैं, सेम आते हैं, तब हम उसको बोलेंगे दैट ऑल आर द ratios are equivalent ratio। Okay, so that is concerned with that। Now next one is that can you find two equivalent ratios of 4:2? obviously हमने अभी देखा था 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर बनता है 8/4। वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन by multiplying the numerator and denominator by the same number। Similar way, we are using we can find out the equivalent fraction by dividing। एक बार डिवाइड करो, एक बार मल्टीप्लाई करो, तो सेम नंबर से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर मिलता है, और सेम फ्रैक्शन को यदि हम डिवाइड करते हैं सेम नंबर से तो भी हमें एक नंबर मिलता है। तो 2/1, 4/2 and 8/4 are the equivalent ratio। So these are infinite equivalent ratio for a given ratio। एक रेशियो में बहुत सारे इक्विवेलेंट रेशियो हो सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब अनंत, बहुत सारे। वी कैन नॉट कैलकुलेट इट, वी कैन नॉट काउंट इट। ओके, तो इतने सारे रेशियोज हो सकते हैं। तो ये बात थी, हमने ऑलरेडी ये सब कुछ सीखा हुआ है। विच इज़ ग्रेटर इंटू 2:5 और 3:7। तो हमें बताना है कि 2:5 और 3:7 का इक्विवेलेंट रेशियो हम निकाल लेंगे, और फिर कन्वर्टिंग टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, एंड देन आफ्टर वी गॉट 14/35 एंड 15/35। सो विच वन इज ग्रेटर? ऑब्वियसली जिसमें बड़ा नंबर है 15, सो दैट इज ग्रेटर। तो इस तरीके से किसको ग्रेटर बोल सकते हैं, किसको लोएस्ट बोल सकते हैं, किसको इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, ये रेशियो का पोर्शन ऑलरेडी हमने रिकैपिंग पार्ट में देखा है। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन हियर। अब हम चलते हैं सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज रिलेटेड विद द फाइंडिंग मिसिंग क्वांटिटीज। यदि हमें फाइंड करना है तो कैसे करते हैं? Just we have to check it out। In a computer lab, there are 3 computers for every 6 students. How many computers will be needed for 24 students? So let us solve this problem here। Number of computers, here consider that number of computers is 3, number of students is 6, so 3/6 is there। Number of computer needed for 24 students, so 3/6 is equal to total हमें है, but कितना है वो हमें फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क है वो, दैट इज मिसिंग नंबर। सो लेट अस सॉल्व द मैथमेटिकल स्टेटमेंट यूजिंग द स्टेप वी लर्न इन क्लास 6। जो क्लास 6 में हम सीख चुके हैं, ऐसे ही हम यूज करेंगे स्टेप्स वाइज। राइट द रेशियोज एज फ्रैक्शन। एक 3/6 है और दूसरा क्वेश्चन मार्क बाय 24 है। अब आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन विथ नो मिसिंग नंबर, मतलब 6 और 25 है, नो नंबर्स आर मिसिंग इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कोई मिसिंग नहीं है, तो वो पार्ट्स को हम कवर करेंगे पहले। तो 6 into 4 यानी 24 होता है। सो व्हाट शुड 6 बी मल्टीप्लाइड विथ टू ऑब्टेन 24? ऑब्वियसली 6 को 24 लाना है तो 6 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। 6 4 are 24। तो हमारे पास जो चीज मिल रही है वो ऐसे मिलेगी कि इफ वी आर यूजिंग 4, देन फोर्थ स्टेप्स आर देयर, मल्टीप्लाइंग द अदर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन विद द सेम नंबर टू फाइंड द मिसिंग नंबर। मतलब हम ऐसा करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 हमारे पास मिल जाएगा 12, तो हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा मिसिंग नंबर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये पूरा एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है वो स्टेप वाइज आज आप अपने होमवर्क में भी लिखना है, मिसिंग द नंबर।
और दूसरी चीज़, जो पहले पार्ट में मैंने बताया आपको कि रेशियो क्या है, रेशियो के बारे में उसका एक एग्जांपल बताया, वो जो एग्जांपल्स मैंने बॉयज और ट्री का बताया, ये एग्जांपल भी आपको सॉल्व करके लिखना है आज के होमवर्क में। और ये जो एग्जांपल अभी कंप्यूटर लैब वाला मैंने एक्सप्लेन किया मिसिंग क्वांटिटीज में, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो टोटल 2 आज के होमवर्क में आपका रहेगा। थोड़ा आज होमवर्क शॉर्ट है, but you have to cover this both of the examples, but you must be cleared about the ratio जितने हमने सीखा है वो पूरा आप अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी सप्लीमेंट्री बुक में जो मैंने आज पेज दिखाया वो पूरा, उसका डेफिनेशन, फिर उसका एग्जांपल्स, एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग फॉर दिस नेक्स्ट वन एग्जांपल दैट इज मिसिंग क्वांटिटीज, उसमें से जो एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किए वो means whatever the example solved in during this whole video, आप अच्छी तरह से वीडियो देखो, इसमें जहाँ जहाँ मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किया वो सभी एग्जाम्पल्स आपको रफ बुक में करना है, समझ लो, नॉट इंक्लूडिंग इनटू द फेयर बुक, but you have to walk into the rough book and then you send it all things as today's homework. So thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.